کاموکی میں 9 محرم الحرام کے دن شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں شہر بھر میں مختلف مقامات سے علم کے چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ مرکزی جلوس علم غازی عباس علمدار علیہ السلام ہرر روڈ کاموکی سے صبح 10 بجے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا نماز مغربین کے بعد کاموکی جی ٹی روڈ پر واقع امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے گریہ زاری، نوحہ خوانی، سینہ کوبی کے ذریعے غازی عباس علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ سبیل حسینی اور لنگر حسینی کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت غازی عباس علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جب 10 محرم کو آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ کرنے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام کو صرف پانی لانے کی اجازت ملی۔ آپ نے ہزاروں یزیدیوں کو فنار کرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ کر پانی تک رسائی حاصل کی، مگر وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے خود پانی نہ پیا۔ واپسی پر جب وہ مشق سکینہ لے کر لوٹ رہے تھے تو یزیدی فوج نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، لیکن پھر بھی آپ علم تھامے وفا کی علامت بنے خیموں کی طرف بڑھتے رہے اور یزیدی فوج نے آپ کو گھیر کر شہید کر دیا۔ یہ دن نہ صرف حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کا موقع ہے، بلکہ وفاداری، شجاعت اور اصرار جیسے عظیم اوصاف کو اپنانے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جعفر حسین، NTN نیوز کاموکی۔ خوبی کے لیے کیا وفاق کی جانب سے کوئی ایسا آپریشن لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کی سرپرستی میں؟ کیونکہ جب یہاں آپریشن ہوتا ہے ڈاکو پنجاب چلے جاتے ہیں، پنجاب میں ہوتا ہے سندھ آ جاتے ہیں، تو ان کی سڑکوں کی آپ جلد دیکھیں گے دن دہاڑے وارداتیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن وہاں پر جو متعلقہ حکام ہے یا پولیس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں میری بات سنیں، دو اضلاع ہیں جو شکارپور اور کشمور گنگکوٹ، یہ گانا وزیرستان بن چکے ہیں۔ یہاں ہمارا سیکورٹی پلان نہیں ہے، کیا سندھ حکومت نہیں کرے یا وفاق کو یہ اطلاع نہیں ہے؟ ہمیں اطلاع بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے KPK میں دہشت گردوں کو مار بگایا ہے، اور آپ کے سامنے سارا کچھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان کا بھی بندوبست کریں گے اور سارے مل کے صوبے کریں گے۔ یہ نہیں کہ خالی پنجاب کرے گا یا سندھ کرے گا، فیڈرل گورنمنٹ اور سارے صوبے مل کے کریں گے انشاءاللہ۔ سر آپ نے گزشتہ دورے پہ میں جو ہے وہ نادر آفس کے قیام کا جو اعلان کیا تھا، تو چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نے اس کو جو ہے وہ اوپن کرا دیا ہے اور شہریوں کے لیے سہولت ہو گئی ہے، اس کو خوشائن بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور اعلان تھا پاسپورٹ آفس کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ کب تک عمل ہوگا تاکہ مزید جو ہے وہ شہری آپ کے دورے سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک رہا نادرا کا آفس، وہ کریڈٹ کمیل بھائی کو جاتا ہے، جنہوں نے سارا پش کیا اور کرایا اور میک شور کیا کہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں۔ پاسپورٹ کے لیے بھی ابھی میری بات ہوئی ہے، کیونکہ انڈر کنسٹرکشن ہے جو پرانا والا آفس ہے، مگر ہم اس کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم انہی کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی جگہ کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو اگلے 1-2 مہینے کے اندر کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ تھینکس۔ نقوی صاحب، آپ یہ بتائیں جو ہے سندھ میں جو قبائلی برگیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکو راج بن چکا ہے، اور ڈاکو راج کے شہر میں جو ہے خالص دودھ نہیں مل سکتا، اور وہاں پر کچے پکے میں جدید اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ آپ میں نے آپ کو بھی تو اس کا جواب دیا کہ آپ اس کا بھی ساروں کی طرف سے جوائنٹ ایفرٹ ہوگی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انجام ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ روہڑی میں اس وقت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور آپ کو خبر دیں گے کہ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی 9 محرم الحرام کے سلسلے میں 27 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوں گے، 65 مجلس منعقد کی جائیں گی۔ DPO حافظ آباد کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز محمد ابوبکر مغل سے۔ جی ابوبکر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں 9 محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بات کریں حافظ آباد میں 9 محرم الحرام کے سلسلے میں جو ہے وہ چھوٹے بڑے جو 27 جلوس برآمد ہوں گے اور 65 جو مجالس جو منعقد ہوگی، جس میں علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے مصائب بیان کریں گے۔ اور بات کریں سیکورٹی کی حوالے سے تو DPO حافظ آباد عاطف نذیر کی جانب سے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے داخلی و خارجی رستوں کو خاردار تاروں ٹریکٹر ٹرالی سے بند کر دیا گیا ہے، اور جلوس کے رستوں میں جو چھتوں پر مایہ ناز نشانے باز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 محکمہ اور صحت کا عملہ جو ہے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور بات کریں جلوس میں جو داخل ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے عزاداران کو
वो मेटल डिटेक्टर और जामिया तलाशी के बाद उन्हें जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है और जुलूस के रस्तों में शहरियों की जानब से ठंडे पानी की सबीलें और लंगर का एहतमाम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर, आपने तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां की तहसील पिपला में 9 मुहर्रम उल हराम का सबसे कदीमी जुलूस मूसावाली से बरामद हुआ, जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मिथा स्टॉप पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। मियांवाली की तहसील पिपला में 9 मुहर्रम हराम का 70 साल कदीमी निकाले जाने वाला मातमी जुलूस मूसावाली से बरामद हुआ, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ 7 किलोमीटर पैदल सफर तय करने के बाद मिथा स्टॉप पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मैं बहसीयत बानी तमाम पुलिस अफसरान सिपाही जितने भी हमारे साथ हैं, अमला के बाकी सिक्योरिटी के जितने भी लोग हैं, प्लस हमारे साथ जो एड के अपना मेडिकल एड है हमारे साथ, बाकी जितना भी अमला है, मैं उनका निहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस जुलूस में हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया है और ख़ासकर जो सुथरा पंजाब के लोग हैं, बच्चे हैं, सफाई करने वाले, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के दस्ते सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। साथ गर्मी और हब्स की वजह से जगह जगह सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। जहाँ पे जुलूस बरामद हो रहा है, जुलूस में सबीलों का खसूसन हमारे अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं, जिस पर हम उन लोगों के बेहद मशकूर हैं। और यहाँ पे जो जुलूस गुजरता है जिस रूट से, वहाँ पे लंगर न्याज सब चीज़ होती है। और ये सिर्फ अहले तशरीक़ ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत लोग भी हमारे साथ तावन करते हैं। और रेस्क्यू 112 के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तिबी इमदाद देने के लिए महकमा सेहत की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTA न्यूज़ मियांवाली। 9वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला सूफीपुरा में ख्वाजा शजर अब्बास के घर से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जहीर अब्बास। मंडी बहाउद्दीन में 9वीं मुहर्रम उल हराम के मौका पर अलम ताज़िया और शबी जुलजना का मुश्तमिल मरकजी जुलूस मोहल्ला सूफीपुरा ख्वाजा शजर अब्बास की हवेली से बरामद हो चुका है। मैं मौजूद हूँ मोहल्ला सूफीपुरा रोड पर, जहाँ 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। यह जुलूस नगीना सनमा चौक, रेलवे फाटक, कचहरी रोड और सदर चौक से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया सदर बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। जिली इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले अदालों की जानब से जुलूस के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के पुरफरूख इंतजाम किए गए हैं। 1600 से जायद पुलिस एहलकार व जवान के साथ साथ रेंजर और पाकिस्तान आर्मी की एक कंपनी भी तैनात की गई है, जहाँ एहसास मकामात पर CCTV कैमरों के जरिए मुश्तमिल निगरान जा रही है। जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 11 समेत दीगर इमदादी इदारे जो हैं वो मरकजी जुलूस के मौका पर मौजूद है। 9वीं मुहर्रम के मौका पर जिला भर में 130 से जायद मजालस और 60 से जायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जहीर अब्बास, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल मियां महबूब रशीद ने चीचा वतनी का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद मलिक की इस रिपोर्ट में। चीचा वतनी मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से चीचा वतनी में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम मुकम्मल। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसफ तुफैल और RPO साहिवाल मियां महबूब रशीद के हमरा चीचा वतनी का दौरा किया। दोनों आला अफसरान ने ब्लॉक नंबर 4 में वाक़ मरकजी इमाम बारगाह का दौरा किया और यौम शुरा के हवाले से सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर ज़िले अफसरान ने मुकामी इंतजामिया से ब्रीफिंग भी हासिल की और जुलूस के रूट्स का मौके पर मुआयना किया। RPO महबूब रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जुलूस के तमाम रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं ताकि किसी भी शर पसंद को मौका ना मिल सके और अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन बाबर सिद्दीकी के साथ जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTA न्यूज़ साहिवाल। मुहर्रम उल हराम का महीना सब्र, इसार और कुर्बानी की लाजवाल दास्तानों का महीना है। 9 मुहर्रम उल हराम को शकरगढ़ में शहदाए करबला की याद में दूध की सबीलों का इनेकाद किया गया। जगह जगह ठंडे दूध, शरबत और पानी की सबीलें लगाई गईं। सबीलें महज दूध पिलाने का जरिया नहीं बल्कि ये अहले बैत से इजहार मोहब्बत का एक जरिया है, वफा और अकीदत का भी मजहर है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसन शेख। जी हसन। जी बिल्कुल, आज 9 मुहर्रम उल हराम शहदाए करबला की याद में
शकरगढ़ में जगह जगह मुख्तलिफ दूध और पानी की स्पीलों का एहतमाम किया गया है। तो मैं इस वक्त शकरगढ़ के रेलवे रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़ी दूध की स्पील का एहतमाम किया गया है। ठंडे मीठे दूध से शहरियों की तवाज़ा की जा रही है। तो इस बात करने के लिए हमारे साथ स्पील के मुंतज़मीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 और 10 मुहर्रम को शोधा करबला की याद में स्पील लगाई है। 10 मुहर्रम हमने दूध लगाया और ये हमें शोधा करबला की याद दिलाती है। जी, आपने मुंतज़मीन स्पील की बात सुनी। इसके अलावा आपको मज़ीद बताऊं तो शहर भर में दूध और पानी की स्पीलों का एहतमाम किया गया है। शुमार रोड पर इंजमन आशिकान रसूल की जानिब से एक बड़ी दूध की स्पील का एहतमाम किया गया है और इसी तरह मुख्तलिफ जगह पर लंगरों न्याज का सिलसिला भी जारी है। और ये मनाजर हमें करबला के उन शहीदा की याद दिलाते हैं जिन्होंने प्यास की शिद्दत में भी हक का अलम बुलंद रखा। जी, हसन शेख हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे तहसील कोटचट्ठा का, जहां शहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की प्यास की याद में जगह जगह मीठे पानी की सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है ताकि उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा सके। इस पर मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद जावेद जतोई से। जी जावेद। हराम में आज़ादारी और जो है ना मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी तरह जो है ना शहरों की जानिब से जो है ना नज़र न्याज और जो है ना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास की याद को ताज़ा करने के लिए जगह जगह पर जो है ना सबीलें लगाई गई हैं। आज हम इस वक्त इस सबील पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो है ना मुंतज़मीन मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जान लेते हैं। जी सर, बताएगा ये जो है ना आप सबील कितने अरसे से लगा रहे हैं? लगा रहे हैं क्योंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, उनको ताज़ा करने के लिए हम हर साल सबील लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि हर साल इसी तरह ही लगाते हैं, इसी जगह पर भी लगाते हैं क्योंकि हमने लोगों को बताना है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने बात सुनी है मुंतज़मीन की, उनका यही कहना था हम हर साल सबील लगाते हैं और इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है हम लगाते रहेंगे। ये इनका मकसद यही है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है ना करबला में जो ना कुर्बानियाँ हैं और उनकी जो है ना प्यास को ताज़ा करने के लिए हम हर साल लगाते हैं और हमारा भी यही पैगाम है दूसरे भी मोमिन को ये लगाएँ और हमारा जो सिलसिला जो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम सबील लगाते हैं और लगाते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जावेद जतोई, आपने तफसीलात से आगाह किया। हारूनाबाद में भी 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं और फूल भी चढ़ा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सज्जाद वट्टू से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हारूनाबाद के शहर खामोशा में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों के किसी तादाद ने कब्रस्तानों का रुख किया हुआ है। तो लोग कब्रों पर आकर अपने प्यारों के लिए दुआ मग़फ़रत और जो कब्रें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं इनको पुख्ता कर रहे हैं और कब्रों पर फूल की पत्तियाँ निशावर कर रहे हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए शहरी भी मौजूद है। शहरियों से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, मुहर्रम हराम का महीना जो है ये हमें अपने प्यारों की याद दिलाता है, इसीलिए उनकी कब्रों पर आया जाता है और फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं। अगर कोई बारिश की वजह से या किसी भी तरह को नुकसान होता है कब्र को तो उसको मरम्मत किया जाता है और जो लोग हैसियत रखते हैं वो अपने प्यारों की कब्रें पुख्ता भी करते हैं। यही दिन होते हैं मुहर्रम हराम के और इन दिनों में दुआएं की जाती हैं मग़फ़रत की और मुख्तलिफ़ सबीलें लगाई जाती हैं, पानी पिलाया जाता है लोगों को और चीज़ें बांटी जाती हैं, नज़र न्याज की जाती है और अपने प्यारों के लिए ख़ुसूसी कब्रों पर आकर दुआएं की जाती हैं। तो यही है, बहैसियत मुसलमान हम कब्रों पर आते हैं अपने प्यारों के, तो बहुत याद आते हैं प्यारे और उनके लिए दुआएं भी की जाती हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात से, शहरी का कहना है कि जो कब्रें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं उनको हम इधर आकर पुख्ता करते हैं और अपने प्यारों के लिए दुआ मग़फ़रत करते हैं और उनके साले सवाब के लिए दुआ करते हैं। जी, अपडेट कर रहे थे सज्जाद वट्टू। खानपुर में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी और तिलावत कुरान करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक वसीम जटकी कब्रिस्तान में मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी शहरों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी और तिलावत कुरान पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम साल बाद अपने चाचू की कब्र पे आए हैं, फातिहा खानी की, लंगर भी दुकान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी कब्रें जो कि ख़राब हुई पड़ी हैं, गिर गई हैं बारिश की वजह से। उनके लवाकिन यहाँ आना गवारा भी नहीं किया। मेरे उनसे गुजारिश है कि अपने
अजीज़ कारब की कब्रों पे लाजमी एक बार साल में चक्कर लगाया करें। इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि यहाँ पानी का इंतज़ाम करें और यहाँ छाँव वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ हम साल बाद आए हैं, अपने बड़ी कब्रों पे हम फातिहा पढ़ने आए हैं, लेकिन यहाँ का कोई परेशान हाल नहीं है। यहाँ बहुत सी कब्रें गिरी हुई हैं, इंतज़ामिया को कोई तवज्जो नहीं है, पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन इनके लवाकिन को भी चाहिए कि वो आएँ, अपने बड़ों की कब्रों का ख्याल करें और चेक करें और उनकी मुरम्मत वगैरह करें। जैसा कि शहरियों का कहना था, तहसील इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतजामात ना किए हैं। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की हालतजार देखकर गमज़दा हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, आपने तफसीलात से आगाह किया। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।